Hello everyone, my name is Priyanka and I welcome you all on my YouTube channel Maths BFF. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी अच्छे होंगे. Yes? Okay. So you can write in comment box. You all are good? Yes or no? Write in comment box. Okay. So listen everyone. In our last video, you all got to know about fractions, right? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? फ्रैक्शंस के बारे में. चलो हम एक जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है ना? तो हमने फ्रैक्शंस के बारे में क्या क्या पढ़ा? डू यू रिमेंबर? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आई होप आपको याद होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन को हम मैथमेटिक्स में किस तरीके से फॉर्म करते हैं. यू रिमेंबर? येस और नो? Yes, that's great. Okay, so just let's do a quick recap. मैं वापस से आपको बताती हूँ. Like I was telling you in previous class about fraction. Fraction means what is the meaning of fraction? A small part or a amount from a whole I'm taking out. We call it fraction. Yes or no? Okay. So and I told you how do we form fractions, right? क्या होना चाहिए फ्रैक्शंस फॉर्म करने के लिए? फर्स्ट वी नीड द अपर पार्ट इज नोन एज. बताइए, अपर पार्ट जो होता है फ्रैक्शन बार से उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? टेल मी. यस यस, यू आर राइट. न्यूमरेटर. वंडरफुल. एंड व्हाट अबाउट द बिलो पार्ट? जो फ्रैक्शन बार के बिलो होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम? यस, डिनोमिनेटर. यू ऑल आर राइट. So yes everyone, the upper part is known as numerator but the below part is known as denominator. Okay? So ये आपको अच्छे से पता है फ्रैक्शन बार के बारे में और न्यूमरेटर के बारे में भी और डिनोमिनेटर के बारे में भी, राइट? अब फिर हमने पढ़ा about like fractions and unlike fractions. You all know both are opposite, like, unlike, like, unlike, like. Can you see? If you are taking interest and you are finding my videos good for you, then you can like it. Yes or no? Yes. So similarly when we talk about fraction, तो जैसे हम फ्रैक्शन की बातें करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में भी लाइक और अनलाइक होता है ना? तो जब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, लाइक मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक? मैंने आप लास्ट वीडियो में बताया था ना, लाइक मतलब क्या? कुछ तो कॉमन है, समथिंग that me and you both like mathematics. You like maths, I like maths, so ये क्या हो गया? Yes, we both like maths, right? So this is common in between me and you. Similarly, but हम जब fractions के बारे में बात करते हैं तो fractions में जब हम like fraction के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करते हैं? उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए. अगर टू फ्रैक्शंस हैं, दोनों लाइक हैं, दैट मीन्स उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं. बट अब जब हम अनलाइक की बात करते हैं तो क्वाइट ऑपोजिट, उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है? आज की क्लास में डू यू नो, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? समथिंग न्यू. यस, सो टुडे वी ऑल विल गेट टू नो types of fractions. Yes, you all are right. So जैसे कि there are different kind of colors, different kind of flowers, fruits. Similarly, there are few types of fractions. So today we all will talk about type of fraction and we will get to know how do we write. Are you ready? So let me write on board and look here, right? Look here. Don't write anything. First you need to try to understand and then you can write. Okay everyone? Okay. So today we all will get to know about types of fraction. Let me write types of fraction I'm talking about. Yes. So types of fractions. So in mathematics everyone, okay, so in mathematics I am writing few fraction over here. Okay, so my first fraction is
3/4 and my second fraction is 4/3. Okay, I wrote two fractions over here. One is 3/4, another one is 4/3. First you all will tell me, are these like fractions? Write in comment box, are these like fractions? Yes, you are right. No, these are not like fractions. Why? Why? What is the reason? Because denominators are different. You can see now, denominators are different. That's why these are not like fractions. So what kind of fraction these are? If these are not like, then what kind of fractions? Opposite of like is what? Alike. You are right. So that means ये कैसी fractions है everyone? ये दोनों alike fractions हैं, है ना? बट अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस? आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस है इन दोनों फ्रैक्शंस में? अगर मैं यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग 3/4 एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन आई रॉट ओवर हियर 4/3, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आई कैन सी वन डिफरेंस, माई न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. आप देखो, न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है. येस और नो? सिमिलरली अगर मैं इसको देखूंगी, यहाँ पे क्या है? माई न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो दैट मीन्स एन फॉर न्यूमरेटर हियर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. यहाँ पे इस फ्रैक्शन में मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो न्यूमरेटर है, जो अबव पार्ट है फ्रैक्शन बार से, वो क्या है? That is greater than denominator, right everyone? But when I talk about this fraction, यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे I can see my denominator is greater than numerator. So automatically हम इसको कैसे रीड आउट कर सकते हैं? हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि न्यूमरेटर आप छोटे हो और डिनोमिनेटर आप बड़े हो. जैसे मैम क्या है? मैम एंड यू, कंपेयर बिटवीन मी एंड यू, हु इज ग्रेटर, हु इज बिगर? Yeah, tell me in age also, right? Yes. So similarly जो आपका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर है. कहाँ पे? इस वाली फ्रैक्शन में. बट इस वाली फ्रैक्शन में क्या है? आपका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, राइट? अब हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, राइट? सो लेट्स सी. नाउ आई एम मेकिंग वन बॉक्स, राइट? This is one box and I am dividing this box in how many parts? 4 parts. These all are equal parts. Always keep in your mind, we are talking about equal parts. Look, this is equal, this is equal, this equal. For example, you are having one chocolate. ऐसे कंसीडर करते हैं ये एक चॉकलेट है. क्या है? You all like chocolates? अच्छा, टेल मी योर फेवरेट चॉकलेट इन कमेंट बॉक्स. आपको कौन सा चॉकलेट पसंद है? ओके, लेट्स कंसीडर दिस इज वन चॉकलेट. ओके, ये एक चॉकलेट है और मैंने क्या कहा कि आई लाइक चॉकलेट्स अ लॉट. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स हैं? कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. मैंने इस चॉकलेट के 3 पार्ट्स ले लिए. कितने पार्ट्स मैंने ले लिए? 3 पार्ट्स ले लिए. टोटल कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स? 4. तो इसके लिए जो मैंने पार्ट लिया है इस फ्रैक्शन से, इस चॉकलेट से जो मैंने पार्ट लिया है वो कितना है? 3/4, राइट? कितना है? 3/4. अच्छा, जो पार्ट अभी बाकी रह गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं देखूँ, जैसे आप देखोगे कि 3 पार्ट्स तो मैंने ले लिए इसके, राइट? अब इस पे एक पार्ट बचा है. जो बचा पार्ट है उसका फ्रैक्शन कितना होगा? जो ये पार्ट बचा है ना, कैन यू सी दिस? मैंने इसको शेड नहीं करा है. ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना होगा? ये कौन सा फ्रैक्शन बनाएगा? तो ये वाला पार्ट जो है वो कितना हुआ? 1 बचा है ना, और टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है? 4 में. तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/4. आर यू गेटिंग मी? जो पार्ट मैंने ले लिया, जो शेडेड पार्ट है ना, दैट आई टुक फ्रॉम द चॉकलेट. ओके, सो दैट मीन्स उसका फ्रैक्शन कितना है? 3/4. बट यू नो दिस पार्ट इज लेफ्ट. ये पार्ट अभी बचा है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अपने ब्रदर से बोला अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है और आई लाइक चॉकलेट
अलॉट, तो मुझे तुम 3 पार्ट्स दे दो और आप एक 1 पार्ट ले लो, तो उसके पार्ट में कितना चॉकलेट आया 1/4 और मेरे पार्ट में कितना आया 3/4। ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में मैंने, आपने देखा होगा ना चॉकलेट्स किस तरीके से होती है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखोगे किस तरीके का फ्रैक्शन यू आर गेटिंग, यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, राइट और नॉट। इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, टेल मी, आई होप नो, राइट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन, जहाँ पे आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, वहाँ पे व्हाट वी विल डू, सो लिसन टू योर मैम। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना, ओके। क्या है मेरे पास, ओके, मेरे पास चॉकलेट्स हैं, राइट। सो लेट मी मेक चॉकलेट्स, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, एक्सक्यूज मी, 2 chocolate, 3 chocolates and 4 chocolates, right? I am having 4 chocolates. 4 chocolates हैं मेरे पास, right? KitKat, you like KitKat? चलो हम KitKat ले लेते हैं। रेड कलर है ना, तो रेड कलर में आपको पता है कैसा रैपर होता है इसका, KitKat का रेड होता है। तो चलो वी आर टेकिंग KitKat, ओके, यस। तो आपने KitKat ले लिया, राइट। अब आपने क्या करा, 4 चॉकलेट्स है ना, कितनी चॉकलेट्स है, 4 चॉकलेट्स यू हैव, एंड यू आर हैविंग 3 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स हैं आपके, 3 फ्रेंड्स, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड एंड 3 फ्रेंड्स, राइट। अब आपने क्या करा, आपके पास जो ये 4 चॉकलेट्स हैं, आपने एक चॉकलेट इसको दे दी, एक चॉकलेट इसको दे दी, एक चॉकलेट इसको दे दी, ठीक है ना। तो आपने एक एक चॉकलेट सबको दे दी, बट स्टिल यू कैन सी 1 चॉकलेट इज स्टिल लेफ्ट, एक चॉकलेट और बची है ना। आपने क्या करा, इस चॉकलेट के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। कितने, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये पार्ट इसे दे दिया, ये वाला पार्ट इसे दे दिया एंड ये वाला पार्ट इसे दे दिया, ठीक है ना एवरीवन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो ज़्यादा हैं बट नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर लेस देन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो आपको इसी तरीके की जो फ्रैक्शंस होती हैं जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर देन न्यूमरेटर होता है, तो इस केस में होता है, ठीक है ना। तो इस केस में होता है जहाँ पे आपका नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम है, मेरे को नंबर ऑफ फ्रेंड्स के बीच में क्या डिवाइड करना है, चॉकलेट्स को डिवाइड करना है, इक्वल नंबर मुझे चॉकलेट्स का उन सबको देना है, ठीक है। तो इस तरीके की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, और इस तरीके की जो फ्रैक्शंस होती हैं जहाँ पे आपका न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है और जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन न्यूमरेटर होता है, तो इस तरीके की फ्रैक्शंस जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। सो टुडे आई विल टेल यू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो आर यू रेडी? इफ यू वांट टू write this, make it in your notebook, please take a time. I'm just, you can take a screenshot, okay, fine. Oh, let me erase now. Okay, so now let me write everybody, okay. So types of fraction we are talking about, right? So let me लुक हियर। तो एक टाइप होता है, वी कॉल इट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, से विथ मी, व्हाट डू वी कॉल इट? प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। और एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इट? Improper fraction. And there is one more fraction, everyone, and this fraction is known as mixed fraction. This fraction is known as
mixed fraction. I will tell you about mixed fraction also. No worries. Look here. So, when we are talking about the first type of fraction, this is proper fraction. Okay. Proper fraction की बात हो रही है, मतलब मैं एक होल में से कोई एक पार्ट निकाल रही हूँ, कोई वन इक्वल पार्ट निकाल रही हूँ. तो जब आपका when your denominator is greater than numerator, confused? No, don't be confused. Listen, जहां पे आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, smaller than denominator, so this kind of fractions are known as proper fraction. This kind of fractions are known as proper fraction. जहां पे आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है. अब हम तभी तो बात करते हैं, हम एक होल की बात कर रहे हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन होल, तो वन होल में से हम कोई पार्ट निकाल रहे हैं, राइट? तो इस तरीके की जो फ्रैक्शंस है उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ऑपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का. जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं एवरीवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2. दैट मीन्स इम्प्रॉपर मतलब क्या? कि यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन है न्यूमरेटर से. जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर द बिलो वन इज लेस देन न्यूमरेटर. सो दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने क्या देखा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देयर इज वन मोर फ्रैक्शन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप समझिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. कैन यू सी द फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर, सेकेंड टाइप इज इम्प्रॉपर, थर्ड टाइप इज मिक्स्ड. से विद मी फर्स्ट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. वन इज प्रॉपर, second one is improper and third one is mixed. okay? जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो लेट मी राइट ओवर हियर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन तो n फॉर न्यूमरेटर होता है. n फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है वो आपका लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. d इज फॉर डिनोमिनेटर. Okay, listen to me carefully. D is for denominator and N is for numerator. Okay, but when we talk about when our numerator is greater than denominator, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ N for numerator जो है वो greater than है denominator से. So इस तरीके की fractions को हम क्या बोलते हैं? improper fraction. अब आती है हमारी mixed fraction. अच्छा, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ. पहले अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लो. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. क्लियर? देन आई विल टेल यू अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, यस एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको? आई होप ये क्लियर होगा. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स. इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, fine, let me erase now. I will explain you now about mixed fraction. Mixed fraction समझाने से पहले I am writing few examples और आपको differentiate करना है which one is proper fraction and which one is improper fraction. I am writing two questions over here. Okay, first question is 7/6. Second fraction is 3/8 and third fraction is 9/7. So write on comment box or just find out the answer and tell me this is what kind of fraction. Is this proper, improper? Similarly, is this proper, improper? Is this proper, improper? Find out your answer. Yes everyone, let's do practice. Okay, I hope you found your answer. I'm erasing it now. It's very simple for all of you, right? अभी हमने आपको बताया. Okay, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में. किसके बारे में एवरीवन? Now we are talking about mixed fraction. मिक्स्ड से कुछ लग रहा है मिक्स कर दिया है कुछ इसमें,
कुछ तो मिक्स करा है। मिक्स से ही समझ में आ रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं ना एक साथ, तो हम कहते हैं ना मम्मा आज मिक्स वेज बनाओ सब्जी, राइट, जब हम बोलते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है, मिक्स करा है, कुछ क्या करा है, मिक्स करा है। अब देखो कैसे मिक्स्ड करा है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वन सर्कल, राइट, दिस इज वन सर्कल एंड आई एम मेकिंग वन मोर सर्कल, आई एम मेकिंग वन मोर सर्कल। तो ये जो सर्कल है मैंने इसको पूरा शेड कर दिया, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है इसका। और लेट मी यूज रेड कलर ऑल्सो बिकॉज दिस इज माई फेवरेट कलर, बोथ रेड एंड ब्लैक। सिमिलरली मैंने क्या करा, अच्छा मैं एक ही कलर से शेड करती हूँ इसको, लेट मी इरेज, लेट मी शेड बाय रेड कलर, ओके। ये पूरा शेडेड है, राइट, पूरा मैंने इसको शेड कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रायंगल, इस वाले सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इक्वल पार्ट्स हैं, ओके एवरीवन, दीज 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या करा है, इसको डिवाइड करा है, राइट। सो व्हेन आई एम डिवाइडिंग दिस इन 2 इक्वल पार्ट्स, और मैंने अब क्या करा, इस वाले पार्ट को तो शेड कर दिया है, बस जो इसका राइट हैंड साइड में पार्ट है ना, मैं उसको शेड नहीं कर रही हूँ, राइट। सो आप मुझे ये बताइए इसमें कितने होल हैं, 1 होल है और पूरा ही शेडेड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल 1 लिख देंगे, यस और नो। मैंने पूरा शेड कर दिया, बट इसको अगर मैं सिर्फ शेडेड पार्ट की बात कर रही हूँ तो कितना पार्ट आएगा, क्या फ्रैक्शन आएगा इसका, बताओ जल्दी से। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे इस तरीके के क्वेश्चंस कि जब मैं एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर दिस पार्ट, देन व्हाट विल यू राइट, yes yes yes, you are right, well done, keep it up, okay, so that means 1 होल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, राइट और नॉट। तो yes everyone, अब आपको समझ में आ रहा है, जब आपका होल पार्ट और आपका ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है दोनों मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, से इट लाउडर, मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, लिसन एवरीवन, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 होल एंड 1 हाफ, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगी। लेट मी राइट, ओके लुक, 1 होल है और कितने हाफ हैं, 1 हाफ है। तो जो होल पार्ट है वो बिल्कुल इसके 1/2 के बिल्कुल सामने आप लिखोगी। होल पार्ट आपको हमेशा ध्यान रखना, जो ये पार्ट है जो फ्रैक्शन पार्ट के बिल्कुल सामने आ रहा है उसको हम होल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 1/3 एंड 1/4, सॉरी 3 होल, आप इसको कैसे रीड करोगे, ये जो पार्ट है जो पहले आ रहा है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है उसको आप कैसे बोलोगे, होल। तो इसमें कितने होल हैं, 3 होल हैं और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, राइट एवरीवन, समझ में आया। इस तरीके की फ्रैक्शंस जहाँ पे आपका होल और फ्रैक्शन पार्ट दोनों कंबाइन हो जाते हैं, उस तरीके की फ्रैक्शंस को हम कौन सी फ्रैक्शंस बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताया था ना मैंने आपको, मिक्स्ड मतलब कुछ तो कंबाइन हो रहा है। तो इस तरीके की फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे एवरीवन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आपका होल और आपका फ्रैक्शन पार्ट दोनों कंबाइन हो जाते हैं उस तरीके की फ्रैक्शंस को हम कौन सी फ्रैक्शंस बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे कि इसमें कितने होल हैं। आप ये लिख सकते हो, यू कैन मेक दीज 2 सर्कल्स। इस तरीके की फ्रैक्शंस जो होती हैं वो कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं, क्लियर, ओके। लेट मी इरेज नाउ। तो आई एम राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस अगेन, यू ऑल नीड टू फाइंड आउट कि उसमें कितने होल हैं और कौन सा पार्ट फ्रैक्शन वाला पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इसमें कितने होल हैं, हाउ मेनी होल, यस राइट, यू आर एब्सोल्युटली 4, वंडरफुल, I can hear you, yeah? Say it louder. Yes, yes, yes.
ओके, यू आर राइट, करेक्ट यू आर। अच्छा, अब हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शंस पढ़े? यस, लाउडर लाउडर, राइट 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 राइट, प्रॉपर, सेकेंड वन इज louder, improper, correct correct, and the third one is mixed, wonderful, great job। अब क्या होता है, आज मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्या है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। अब चेंज करते हैं तो ये पता चलेगा कि मिक्स फ्रैक्शन जब चेंज होती हैं तो वो किस टाइप की फ्रैक्शन बन जाती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आप करो मेरे साथ और आपको पता चल जाएगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्वेश्चन ले लेती हूँ, दैट आई रॉट ओवर हियर, ये है राइट, 4 मुझे बिल्कुल यहाँ लिखना है, राइट, ये है ओके। तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जो आपका होल पार्ट है और जो आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है ना यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। होल कितने हैं, 4 होल हैं, कितना डिनोमिनेटर है, 5 है, तो 5 4 जा 20 आया। अब जो आपका न्यूमरेटर जो है ना, 5 4 जा 20 आया, जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दो। 20 में जब मैं 1 ऐड करूंगी तो कितना आता है, बताइए जल्दी से। व्हाट कम्स आफ्टर 20? 21, यू ऑल आर राइट, 21 आया। तो आप इसको लिखोगे 21 और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। जब आप एक मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप होल देखेंगे, कितने होल हैं यहाँ पे, मुझे पता चला 4 होल है राइट। तो मैंने 4 होल का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करा, दैट इज 4 5 जा 20, और जो न्यूमरेटर है उसको मैंने ऐड करा तो इट विल बिकम 21/5। समझ में आया? और अब आप मुझे ये बताइए कि 21/5 जो है, इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? टेल मी, दिस 21/5 इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर? व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इट इज? यस यस, right, you are, of course, you can see numerator is greater than denominator, so that means this is improper fraction. What kind of fraction this is? Improper fraction. चलिए, let's do few more questions. ओके, तो ये और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये फ्रैक्शन जो है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा चेंज होकर के किस तरीके का फ्रैक्शन बन जाता है, किस तरीके का फ्रैक्शन बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। समझ में आया? इज देयर एनी कंफ्यूजन? आई होप सो, नो, राइट? ओके, लेट मी इरेज नाउ। आई होप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, राइट। सो नाउ लेट मी राइट फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, so it is 7 3/2. Okay, three 1/4. Let's find out the answer. Let's do it with me. Chalo, let's do this one. 7 2 jar 14, होल पार्ट है 7, डिनोमिनेटर इज 2, 14। इसमें हमको किसको ऐड करना है, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। 14 + 3 इज 17/2। व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन दिस इज? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स जब हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके का फ्रैक्शन मिल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट एवरीवन? समझ में आया? वापस से समझिएगा। होल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर, 7 2 जार 14 प्लस न्यूमरेटर, इट विल बिकम 14 + 3 17/2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग 3 1/4। लेट्स डू इट। 3 होल 3 4 jar 12 plus 1 numerator, denominator will be same, 12 plus 1 is 13/4. What kind of fraction we are getting everyone?
Yes, yes, louder. Improper fraction. राइट अच्छा, इसके लिए मुझे एक अब मैं इसके लिए एक चीज़ बनाती हूँ आपके लिए। कितने होल हैं? 3 होल हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं। ओके, और 1 मोर सर्कल। अब 3 होल है ना, मैंने 3 होल को शेड कर दिया। ये तो होल की बात हो रही है, राइट? 1 होल 1 होल 1 होल। अब क्या हो रहा है, मैंने इस वाले सर्कल को वेट जो लास्ट सर्कल है ना, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और मैं उसके सिर्फ 1 पार्ट को शेड कर रही हूँ, ठीक है ना? तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1, मैं शेडेड पार्ट का निकाल रही हूँ, कितना फ्रैक्शन होगा? 1/4। टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब इनको ऐड करो, 1 + 1 + 1 3, और 1/4 इसके साथ में आ जाएगा। सो इज इट ईजी और नॉट? सिमिलरली यहाँ पे आप कितने बनाओगे? 7 बनाओगे। समझ में आया? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? बताइए। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा कि हमारे फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से, राइट? हमारा इम्प्रॉपर क्या होता है? जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पर होल और फ्रैक्शन पार्ट दोनों कंबाइन हो जाते हैं, वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया इतना? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? आई होप सो नो, राइट? सो yes everyone, I hope you liked my video, right? आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जहाँ पे मैं आपका क्वेरी या कुछ भी है, I'll take it and I'll explain you in my next class. And there is one more request everyone. Yes, so there is one more request कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेट मी टेल यू। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। वी विल लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हमने पता चला प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक अनलाइक के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर में। और इन आवर नेक्स्ट क्लास यू ऑल विल गेट टू नो कि हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, राइट एवरीवन? कैसे फ्रैक्शंस को लाइक बनाते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। आई होप you all enjoy with me, right? I'll see you in my next video. Till the time, take care. Bye-bye. Have a wonderful day ahead. Thank you so much.